وہ میں اکثر کہتا ہوں حضرت، کسی نے مجھے ایک فلسطینی بچی کا کلپ بھیج دیا حضرت، توبہ یا اللہ، قربان ان کے حوصلے پہ بھی، اس طرف دنیا کا جدید ترین اسلحہ ہے اور ان کے ہاتھوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر ہیں حضرت، جدید ترین اسلحہ، مقابلہ، چھوٹے چھوٹے کنکر، لیکن لڑ رہے ہیں اور وہ اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں کہ جب تک ایک فلسطینی بھی زندہ ہے ہم ان صہیونیوں کو بیت المقدس پہ قبضہ کرنے دیں گے نہیں۔ ڈٹے کھڑے ہیں حضرت، روز شہادتیں ہوتی ہیں، ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں حضرت صاحب روز۔ ہمارے ادھر حضرت ایک مرتا ہے دفنانے کے لیے اس کو 2000 بندہ آتا ہے، لیکن ادھر کیا ہے، شہادتیں 2000 ہیں، دفنانے والا ایک ہے۔ بلڈوزر پہ چڑھا ہوا ہے، ایک بار میں اٹھاتا ہے، جتنے اٹھائے جاتے ہیں اٹھا کے اجتماعی قبر میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے نہیں پتا آپ کے دلوں کی کیا کنڈیشن ہے، آپ کے دلوں کا کیا حال ہے حضرت، لیکن پتر میرا قد بڑا چھوٹا ہے، میں گجر پتر ہوں اور الفاظ کا ذخیرہ میرے پاس کوئی اتنا زیادہ نہیں ہے، بات کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے، لیکن میں پتر اتنا ضرور کہوں گا، تیرے دل کا مجھے نہیں پتا، لیکن رسول پاک کا دل مبارک اس وقت بڑی تکلیف میں، حضور کا دل مبارک اس وقت، ہم تو اکٹھے ہوتے ہیں، لگیاں نے موجاں ہوں، لائی رکھی سونیاں، فلانا ٹمکانا کر کے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں ہم سارے، لیکن نبی علیہ السلام کا قلب مبارک اس وقت ہے۔ دیکھو نا، جب تھے نہیں حضور تو تب سر انور سجدے میں رکھ رکھ کے رویا کرتے تھے، میری امت میری امت۔ جب آج ہر روز ہزاروں شہادتیں ہوتی ہیں تو قلب مصطفیٰ پہ کیا گزرتی ہوگی، کس حال میں ہوگا قلب مصطفیٰ؟ کسی کو ہے ہی کوئی، سب کو اپنی اپنی موجوں کی پڑی ہے، کسی کو گڈیوں کی پڑی ہے، کسی کو موجوں کی پڑی ہے حضرت۔ تو مجھے کسی نے فلسطینی بچی کا کلپ بھیجا حضرت، میں نے وہ کلپ دیکھا، وہ گھر تھا حضرت، وہ ڈرون سے فائر کیا گیا تھا، راکٹ، ظاہر ہے کہ ٹیکنالوجی کی وہ اس وقت پتہ نہیں کہاں سے کہاں چلے گئے، اس چھوٹے سے راکٹ نے گھر کی دھجیاں اڑا دی ہیں، سارے کا سارا گھر زمین بو، شہادتیں ہوں گئی۔ اپنی مدد آپ کے تحت انہوں نے حضرت اس سارے ملبے کو اٹھایا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سب شہید ہو چکے تھے، لیکن اللہ کی کرنی میں ایک چھوٹی سی بچی بچ گئی ہے۔ اب وہ کلپ کیا تھا، امی ابو بھائی بہن دادا دادی سارے سفید لباس پہنے لیٹے ہیں اور منتظر رہیں کہ جنازہ ہو اور ہم جنت کے لیے نکلیں، تنہا تنہا وہ بچی ہے، لیکن حضرت اس کلپ نے ایک دفعہ دل کو ہلا کے رکھ دیا۔ رو ضرور رہی تھی لیکن روتے ہوئے وہ پڑھ کیا رہی تھی، وہ قرآن پڑھ رہی تھی، رو رہی تھی لیکن پڑھ کیا رہی تھی۔ میں حیران رہ گیا کہ اتنی چھوٹی سی بچی اتنی مصیبت میں اور اس کو قرآن یاد ہے۔ اس حالت میں تو یہاں بڑوں کو قرآن کوئی نہیں یاد ہوتا، کوئی بھی۔ اور پھر دوسری بات یہ تھی کہ بچی کو اتنا بھی پتا تھا کہ اس موقع پہ قرآن پڑھنا کدھر سے ہے، اور پھر تیسری بات یہ تھی کہ وہ جیسے جیسے قرآن پڑھتی تھی مضمون بدلتا تھا، اس کے چہرے کے رنگ بھی بدلتے تھے، پتہ لگ رہا تھا وہ صرف پڑھ نہیں رہی، اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہی ہوں حضرت۔ اب سارے لیٹے ہیں اور وہ پڑھ کیا رہی ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بل احیاء ولکن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ حضرت صاحب دکھ اس بات کا ہے کہ اس 6 یا 7 سال کی بچی کو تو پتہ چل گیا کہ اب کیا پڑھنا ہے، لیکن ہمیں ابھی بھی کوئی نہیں پتہ چلا کہ اب کیا پڑھنا ہے۔ ربیع الاول بھی گزر گیا، ربیع ثانی بھی گزر جائے گا، لیکن ہم بدلے ہم وہی پڑھ رہے ہیں، لگیاں نے موجاں نے لائی رکھی سوڑے، چڑی ہوئی گڈی نو چڑھائی رکھی سوڑے۔ پتہ نہیں اس قوم نے بس پتہ نہیں اس قوم نے کب حضرت ان گڈیوں اور موجوں سے آگے آنا ہے حضرت، کب اس قوم نے حقیقت کی طرف آنا ہے، کب اس قوم میں سنجیدگی آئے گی حضرت، کب یہ قوم جو ہو گیا جو ہو رہا ہے اور جو ہونے والا ہے اس کی طرف آئے گی حضرت، کب تک ہم انہی خواب و خیالوں میں رہیں گے حضرت کہ دو موجاں تے گڈیاں نکلنی نے ساڈے وچ۔ اللہ کیڑیاں موجاں یار اور کیڑیاں گڈیاں حضرت صاحب۔ سیدہ عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان سے
किसी ने पूछा था कि रसूल पाक के घर की कोई बात तो सुनाए। फरमाया क्या सुनाऊं, वो पाक घर तो ऐसा था 3-3 चांद गुजर जाया करते थे, चूल्हा नहीं जलता था। ऐसा चूल्हा तो बहुत बड़ी बात है। कई रातें काशान नबूवत में पुत्र ऐसी गुजरी कि दिए में डालने के लिए तेल नहीं होता था और उम्मत को मौजों और गुड़ियों की पड़ी हुई है। लेकिन पुत्र मैं गुफ्तगू खत्म कर रहा हूं। 3-3 महीने चूल्हा जला, कई रातें दिए में डालने के लिए तेल भी होता। लेकिन पुत्र लिखा है कि जब रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ तो आपके उसी सोने और पाक घर में आपकी अपनी जाती तलवारों की तादाद थी 12। कितनी तलवारें थी जी? तो फिर मैं अक्सर पूछता हूं कि जिस नबी पाक के घर 3-3 महीने चूल्हा न जले लेकिन तलवारें पड़ी हों 12, तो फिर उनकी उम्मत गुड्डियों और मौजों वाली उम्मत कैसे हो सकती है? फिर उनकी उम्मत लंगर वाली उम्मत कैसे हो सकती है? ये उम्मत तो तलवारों वाली उम्मत थी हज़रत। लेकिन बन कौन सी गई? मौजा वाली, लंगर वाली। तलवारें उम्मत भूल गई है साहब। मैं वो फिर बच्चों को अक्सर कहता हूँ, मैं फिर जा रहा हूँ सिर्फ पुत्र तलवारें देखने जा रहा हूँ, क्योंकि वो एक बार देखी थी, वो आग आज भी लगी हुई है। मैं इस्तांबुल गया, तोपकापी म्यूजियम हला, मुझे नहीं पता था हज़रत कि ये मामला भी है। मैं तो वैसे वो तबर्रुकात देखने के लिए गया था जो नबी अलैहिस्सलाम से मंसूब हैं, क्योंकि पुत्र इधर तो ऐसे ऐसे मामले हैं कि चुप रहने में भी डर आता है और बोलने में भी डर आता है। किताबों में जो हमने पढ़े हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक इस्तेमाल में जो नालैन रहे हैं वो 3 से 4 हैं। इतने अद्धे पाकिस्तान के कोल नालैन पे नहीं। चुप रहिए तामी खौफ आता है, कल की जवाब देना, बोलिए तो भाई ताड़े को डर आता है, जाइए तो जाइए कितने। हम तो हैरान है हजरत, 3-3 महीने चूल्हा नहीं घर में जला कोई, किसी को 200 डोइयाँ नहीं, किसी को 300 पतीनियाँ नहीं। हम तो हैरान है हजरत, अब हो क्या रहा। लेकिन क्योंकि पुत्र हम गिरने से भी आगे गिर चुके हैं, हमने किसी को नहीं बख्शा। लाहौर में बाकायदा फैक्ट्री पकड़ी गई जहां जाली गिलाफे काबा बनाया जाता था। हम गिरने से भी आगे गिर चुके। जो मैंने कहा है ना कि साड़ियां 8-8 किलो दे रही, मैं हैरान हूं कि 8-8 भी क्यों दे रही थी। अल्लाह बनता ये भी नहीं, सूख जाना चाहिए इनको हजरत। हम वो तमाशे कर चुके हैं जो हम देखते हैं। ये मेरी पग है, ये कम से कम हजरत को 4 महीने से मेरे इस्तेमाल में है। मैं एक प्रोग्राम पे गया, मैं तकरीर करके इजाज़त लेने लगा, उन्होंने कहा जी रसूल पाक अलैहिस्सलाम के मुबारक बिस्तर की ज़ियारत करवाई जाएगी, अगर आप ज़रा पकड़ के करवा दें। तो मैंने कहा जी इससे बड़ी मेरे लिए क्या सादत होगी, गुजर पुत्र हुजूर दा बिस्तर मुबारक पढ़ने का मौका मिल जाए। वो जब लेके आए तो हजरत वो एक शीशे के डिब्बे में था। अल्लाह को जान देनी है पुत्र, 4 या 5 एने के महीने मैंने पग बंदे हो गए ने। वो बिस्तर मुबारक मेरी पग नालू नवा सी हजरत। ठीक है, जब हुजूर की बात आए पुत्र हम अन्ने हैं, लेकिन हम ऐसे अन्ने भी कोई नहीं है। मैंने उसी वक्त हजरत उनको पकड़ाया और मैं नीचे आ गया। यार 1400 साल पुराना बिस्तर है, कुछ तो 1400 साल के असरात जाहिर होना उस पर। क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें कोई शर्म आया ही नहीं है कोई भी। अब तो खौफ आता है बोलते हुए भी और चुप रहते हो। सिर्फ 3 से 4 नालैने मुबारक किताबों में लिखे हैं जो आपके इस्तेमाल मुबारक में रहे। लेकिन इतने जिन्हों वेखो ओदे कोल ही, यहां तक कि लाहौर में गुलशन रावी में हमारे एक शाह साहब हैं, मुझे इस वक्त उनका नाम नहीं जुबान पे आ रहा, उन्होंने शाह जी बाकायदा लैब बनवाई है। आपके पास कोई भी तबर्रुक है, आप आके शाह साहब से अपना तबर्रुक टेस्ट करवा सकते हैं। शाह साहब टेस्ट के जरिए आपको बताएंगे कि ये बाल कितने साल पुराना है। वो टेस्ट करके आपको बताएंगे कि ये कपड़ा कितने साल पुराना है। वो बाकायदा आपको टेस्ट करके बताएंगे कि ये जो लेदर है ये कितने साल पुराना है। वो आपको बाकायदा टेस्ट करके बताएंगे ये जो आपके पास डोइयां हैं 300, ये कितने साल पुरानी डोई। इतने हालात खराब हो चुके हैं। ये तो जो मैं कह रहा हूं 8 किलो दे रही हैं, हमने वो हरकतें की हैं लालच में आके पैसे के लिए। मैं एक बंदे के पास गया, उसके पास भी कोई तबर्रुक था और वो मुझे कहने लगा कि जी ये मैंने फुला बंदे से इतने लाख में खरीदा है। मैं कहा यार बड़ी हैरानगी वाली गल है जिन्हें तेन वेच छड़े है। उसका कैसे दिल मान गया बेचने को? वो कहना कि नहीं, वो हालात खराब सन। मैं कहा मैं फिर भी नहीं मानता। अगर उसके हालात खराब थे
اور واقعی یہ رسول پاک کا تبرک تھا، تو ہاتھ میں رکھ کے اس تبرک کے وسیلے سے رب سے جہانوں کی بادشاہی مانگتا، اللہ نے وہ بھی دے دی۔ اس کا کیسے دل مان گیا حضور سے منسوب ایک چیز کو لاکھوں میں بیچنے کو؟ اس سے پتہ لگ رہا ہے ہم نے کیا تماشے لگا رکھے ہیں۔ لیکن معاملہ اتنا حساس ہے، کون بولے؟ پتہ سب کو ہے ایسا، لیکن بولتا کیڑا بلدی زبان دے ایسا۔ لیکن پتر یاد رکھنا، آج کی خاموشی کل مروا دے گی تمہیں۔ کل کہیں یہ نہ ہو کہ جب رسول پاک کی بارگاہ میں حاضری کا وقت آئے اور سلیمان مصباحی فرشتوں کو کہے جا کے ذرا عرض کرو سلیمان آیا، اور حضور فرمائے ہم نے نہیں اس سے ملنا، اس کو کہے پتہ سب کو ہے حضرت یہ کیا چل رہا ہے، لیکن چپ ہے سارے، کیڑا ویلنے زبان دے۔ لیکن حضرت صاحب تماشا لگا ہوا ہے، غلاف کعبہ اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہے حضرت صاحب، یہاں کیا کیا معاملے ہیں۔ تو کیونکہ پتر وہاں جو ہیں ان کے پاس باقاعدہ سندیں ہیں اس کی، جو انہوں نے ادھر تبرک رکھے ہوئے ہیں، دل تھا چل دلا ایک کیا یہ نبی علیہ السلام کا مبارک پیالہ دیکھا، نبی علیہ السلام کا نلین مبارک دیکھا، تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آگے جا کے یہ والا رنگ بھی ہے۔ جب ہم نے آخر اینڈ کیا تو پھر زیارت کی میں نے صحابہ علیہم الرضوان کی تلواروں کی، ایسا میں آپ کو بتا نہیں سکتا وہ کیا کیفیت تھی جب میں نے ان تلواروں کو دیکھا، کیا کیا ان تلواروں میں روشنیاں تھیں، کیا کیا ان تلواروں میں طلسم تھا حضرت، کتنے کتنے دل کے دریچے کھل گئے، کیا کیا موضوع عطا ہوئے وہاں حضرت۔ میں نے فوراً سے اپنی جیب سے موبائل نکالا اور ان تلواروں کی تصویر کھینچنا چاہی، لیکن دل نہیں مانا۔ مولوی سلیمان تو کڑک کریں گا، تصویر گیلری میں جائے گی، اور دیکھ تو صحیح گیلری میں کیا کیا تصویریں ہیں، بچوں کی تصویریں ہیں، بچوں کی امی کی بھی ہیں، تو ان میں صحابہ کی تلواریں بھی۔ دل نہیں مانا حضرت، میں نے موبائل واپس رکھ دیا۔ پھر اس میں تصویر کھینچنے کی کوشش کی، لیکن کیونکہ یہ ٹھیک نہیں ہے اس لیے صحیح طریقے سے تصویر کھینچ سکا نہیں۔ لیکن پھر بھی پتر جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے ان تلواروں میں ایک تلوار تھی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ہے۔ پھر حضرت ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا صدیق اکبر کی تلوار۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر ان تلواروں میں ایک تلوار تھی جناب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر حضرت صاحب باری آئی تلوار کی میرے مولا مشکل کشا ہے، اور پتر بڑی ڈنڈیاں لگی ہیں۔ ہم نے حضرت علی پاک آپ کو اس انداز سے بتائے کہ آپ سمجھی بیٹھے ہو کہ شاید حضرت علی ملنگا دئی نہیں، حالانکہ ان کا کیا تعلق حضرت، جڑے سچے ملنگ نے میں انہوں دی گل نہیں کرتا، باقی ان کا کیا حضرت علی سے تعلق۔ تاریخ کہتی ہے علی اس اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر کا نام ہے، علی اس جنگجو کا نام ہے کہ جنہوں نے اپنی ذوالفقار سے 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی تھی۔ حضرت صاحب منہ سے 40,000 ایم ہی نکل گئے، 40,000 تھوڑی تعداد، بڑا مجمع بیٹھا ہے حضرت، نظر ساتھ چھوڑ رہی ہے، پیچھے تک لوگ کھڑے ہیں، لیکن یہ پھر بھی 40,000 ہوں گے۔ 40,000 کافروں کی گردنیں میرے مولا مشکل کشا نے اپنے ہاتھ سے اڑائی۔ کون ہے بدر کا ہیرو؟ کون ہے احد کا ہیرو؟ کون ہے خیبر کا ہیرو؟ کون ہے خندق کا ہیرو؟ آپ جس طرف دیکھیں گے آپ کو ایک ہی ذات نظر آئے گی، علی 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 یا علی یا علی۔ 40,000 کافروں کی گردنیں اڑائی حضرت مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ۔ اور پھر لکھا ہے حضرت، پھر آگے باری آئی ایک ایسی سونی تلوار کی کہ جس نے مذاقید لیول پہ پہنچا دیا، اور وہ تلوار تھی جناب سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کبھی توپ کاپی جائیں گے اور آپ دیکھیے حضرت اپنی آنکھوں سے، وہ مبارک تلوار ویسے دیکھنے میں عام تلواروں سے بڑی ہے۔ اور پھر جب میں نے کتابوں میں پڑھا تو کتابوں میں لکھا تھا کہ حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کا وزن تھا 35 کلو، 35 kg۔ بڑے بڑے جوان ہیں ادھر، لیکن شاید کوئی ایڈا جوان ہوئے جڑا 35 کلو دی تلوار چک لوے، اور پھر صرف چوک کی نہ لوے بلکہ چلائے بھی، اور پھر صرف چلائے بھی نہ بلکہ سیر لائے بھی۔ صرف غزوہ احد میں 31 سر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی اس سونی تلوار سے اتارے۔ اور پھر کتابیں دوسری بات لکھتی ہیں کہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخصیت کا نام ہے کہ جو ایک تلوار سے نہیں بلکہ 2 تلواروں سے لڑا۔
70 किलो तो आपकी तलवारों का वजन था। वो लिखा है कि सैयदना अमीर हमजा रज़ी अल्लाह ताला इतने जने थे कि जब आप घोड़े पर बैठा करते थे तो आपके मुबारक कदम ज़मीन को लगा करते थे। उम्मत तलवारों वाली थी, लेकिन बान नहीं पुत्र, वापस आओ, वापस आओ पुत्र, वापस। उम्मत बुरी तरह फंस चुकी है। बल्कि ये कोई उम्रे से वापस आए ना तो भाई अब जो पता नहीं मुझ पे फतवा दे, मैं एक अपना मिजाज रखता हूँ। मैं बहुत कम हज़रत साहब लोगों को मिलने, क्योंकि आपको ऐसी ऐसी बातें सुनाएंगे दिल को तकलीफ होती है। तकरीबन जड़ा सुन्नी उम्रे तो आए भौं के फिर आके गल ही सुनाएगा, ओ जी मैं मस्से नबी शरीफ च बैठा तो मेरा दिल हलवा खान ते कर पे, इन्होंने इत्थे भी हलवा, इन्होंने उत्थे भी। अल्लाह करे इन्होंने को हलवे चो कढ़ना लाइए। बस फिक्र रज़ा भी हमने बस अपनी मर्जी की बना ली है ना। ओ भाई ये भी तो फिक्र रज़ा ही है ना। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, ये फिक्र रज़ा तो कोई नहीं बोलता। कांटा मेरे जिगर से गमे रोजगार का, यूं खींच लीजिए कि जिगर को खबर ना हो। इत्थे फिक्र रज़ा भी अपनी मर्जी दी है, इत्थे भी हलवा थे उत्थे भी हलवा। बुरी तरह फंसे हुए। फिर आगे से क्या सुनाते हैं, ओ जी मैं नबी पाक दी बारगाह चर्ज की थी, अल्लाह दे रसूल मेरा हलवा। वो बंदे अल्लाह दे जेड़े जेब च रियाल लैके आए, फूकल नहीं लैके आए, जा खा जा मर के जाके बाहर। नहीं सीधी बात है, जड़ा रियाल लैके आए कानू लैके आए, जा बाहर खा जाके, अपने कुत्ते नू पा जाके। उतर ये कभी किसी सूफी को बताना, वो तुझे बताएगा कि क्या है। जा जाके इस कुत्ते नू पा, इनू हलवा लैके पा बन। वो इतनी बड़ी जनाब पुत्र फिर हलवाई है जी। पता नहीं कहाँ से हम निकम्मे नखट्टे नगल्ले उठ के आ गए। कभी हमारे ही बड़े थे जो मदीना पाक जाके हलवा या दालें नहीं, बल्कि वो क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली। ये हम में हलवे वाले, ये हम में दालों वाले। लेकिन हमारे बड़े क्या कहा करते थे, बस याद रहा इतना के सीने से लगी जाली, फिर याद नहीं क्या क्या अनवार नजर आए। अब उम्मत यहां आ गई है कि उम्मत को मस्जिद नबवी में भी हलवा याद आता जाता है। अब उम्मत को मस्जिद नबवी में भी दालें याद आती है जाती। क्या पर लाके उस कुत्ते को पाक, जिसको यहां आके भी हलवा सूझ रहा है, जिसको यहां भी आके हलवे की भूख है, हलवे की तलब है। ये तो पैसे नहीं है जेब फेर को गल अगरी कर लेने, इन्हें तेरी जेब च रियाल पे ने, जा बारू जाके खा। और अगर उस सोनी बारगाह से मांगना है तो वही मांग जो तेरे और मेरे ईमान ने मांगा था। और ईमान ने क्या मांगा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमका दे। किधर हलवा, किधर दाल? कहते हो हम रज़वी हैं, कहते हो हम फिक्र रज़ा पे हैं, कहते हो हम इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी के मानने वाले। वो तुम्हारा क्या ताल्लुक इमाम अहमद रज़ा? इधर भी हलवा, उधर भी हलवा, इधर भी लंगर, उधर भी लंगर। नहीं 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 नहीं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमक। असाए कली मजदहाए गज़ब था, गिरों का सहारा असाए। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। लेकिन हजरत जो मंगना है उम्मत हलवा ते हलवा ते हलवा ते हलवा। ओ अल्लाह दा वास्ता है ना, श्यामा तू बाहर निकलो और थोड़ा सा आगे आओ हजरत। हाँ जी दरबार खुला है हजरत, लेकिन है ही कोई नहीं हजरत। मैं इसी पे बस करता हूँ। मुझे आज भी अपना बचपन याद है, सर्दियों का रमज़ान था, एक फ़कीर आया करता था जगाने के लिए। अब तो यार क्या तमाशा लगा है, उधर एडा सोहना वेला है, बाहर आके ढोल कुटदा हुंदा है। एडा सोहना वेला, बाहर आके पीपा ठड़प 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 लाई होंगी। जा भाई यार रब दा नाम लै जाके। लेकिन पता नहीं वो क्या कोई मस्त कलंदर था, उसकी शायद किसी ने ड्यूटी लगाई थी। मैंने 2 बार बाहर निकल के उसको देखा, छोटा सा कद लाचा पहन रखा था, कोई हाथ में स्पीकर नहीं, लेकिन पता नहीं कितने स्पीकर उसके गले में फिट थे। जहाँ जहाँ से गुजरता था लोगों को जगाता जाता था। और फिर मेरा दिल कहता है कि वो खुद नहीं आया था, उसको किसी ने भेजा था। जा उम्मत घल भूल गई, उम्मत में याद करा के यार। और पता है वो क्या पढ़ के जगाया करता था, ओए होए होए, वो ये पढ़ के जगा, जाग फकीरा जाग वेला सरगीदा, जाग फकीरा
फकीरा जाग वेला सरगी दा खुला ही दरबार मोहम्मद अरबी दा हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं कट्टे बच्चे ट्रैक्टर ट्रालियां किले मुरब्बे दालां ते हलवे ते बिरयानी हम तो मायल बकरम हैं कोई साइल ही नहीं राह दिखलाएं किसे कोई राह रवे मंजिल ही नहीं कोई काबिल हो तो शाने कहीं देते हैं। मैंने 2005 में पहला जुमा पढ़ाया था। अल्लाह मेरी जो फरागत है वो 2008 की है, लेकिन क्योंकि हुक्म था किबला पीर मुर्शिद का तो सर तस्लीम को हम करना पड़ा। तो ये 2024 चल रहा है, 19 साल हो गए कम पेश। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं पूछा कि हज़रत दिल वाला दरूद केड़ा है। हम इसका चस्का ले लेते हैं और आप इसका चस्का लेते हैं, बातों से आगे जाती ही नहीं। हाँ, यहाँ तो हजरत आप कुछ भी ना पूछो तो हम वैसे तसल्ली दे लें कि चलो भाई उन जी कितने किसी मार्फत की अगली मंजिल तो डर गए थे, लेकिन अपने काम की सारी बातें आप पूछते हो। नहीं पूछते तो ये नहीं पूछते कोई भी। मैंने दोपहर को हजरत जड़ा वाला प्रोग्राम किया, फिर मगरिब के बाद भी नारोवाल के गिरदो नवा में, इशा के बाद भी। तो रोज़ का काम है, सैकड़ों हज़ारों लोग मिलते हैं, लेकिन अपनी पूछते हैं, लेकिन ये वाली पूछते नहीं है। बस मुझे उस दिन एक बंदा कहने लगा कि हज़रत ये तावीज़ लिख दें। तो मैंने कहा कि भाई मसला क्या है? तो उसने कहा वो हज़रत भैंस दूध जो है ना वो कम कर गई है तो तावीज़ लिख दे। मैं यार जो दूध घट कर गई तो पट्ठे बधा दे पांदे बूंदे उन्होंने है कख नहीं तो दुध देना चाहिए। मैं तू पट्ठे बता दे, तू पट्ठे बता दे। एक दोस्त ना मेरे पास आया, मुझे आके कहता है हज़रत उधर मेरे घर चल के देखो मेरे ते किसी ने बड़ा ढाडा किस्म का जादू किया है। मैंने कहा तुझे कैसे पता जादू किया है? कहना मैनू पता है। तो मैं मामा मेरे को की लैना है, तू आप ही बड़ा पीर है मेरे को की लैना है, तेनू आप ही जो पता है तो मेरे को की लैना आ गया। क्या नहीं हजरत आप मजाक, मैं भाई मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सीरियस हूँ बिल्कुल। तुझे पता है कि तुझ पे जादू हुआ है? जी बड़ा। तो मेरे को की लेना है, तू मेरे नाल बड़ा पीर है। बहरहाल हजरत वो को प्यार वाला था, ज़बरदस्ती ले गया मुझे अपने घर। तो जैसे मैं उसके सीन में दाखिल हुआ तो वो मंजर देखते मैं खड़ा हो गया। चार बेचारियां बदियां हैं, पिछू ही हड्डियां निकलियां, सारियां निकलियां। मैं मामा जादू जादू कोई नहीं होया, चारे रोज तेरी जान रोंदियां ने रब अगे कि अल्लाह टीका ला के दुध चो लेंदा है पांदा। हाँ जी, आप पुत्र जिससे मर्जी तवीज़ लिखवाए दुध ठीक होना। विश्वाई साहब को लत्ता उत्ते करके सिर थले करके तवीज़ लिया फिर भी दुध ठीक होना, ये कायदा तो नहीं है ना पुत्र कोई। मैं अगर खुद मैंने अपनी आंखों से ना देखा होता तो शायद मैं ना एतबार करता। मैंने खुद, क्योंकि मेरा ताल्लुक गुजर बरादरी से है। सानू कोई 2-4 दिन बाद गाँव शावान लभन सानू मुझे को जो लग पता। तो मैं बरतानिया था तो मैंने वहाँ से कहा यार ना कोई गाँव वेखी, ना कोई मझ वेखी, ना कोई ताज़ा दूध पीता, कोई डब्बे दे पे आई जाते, कोई है इतने भी कोई कहानी। तो उन्होंने कहा कि इधर पास ही वो कोई अंग्रेज़ है तो उसका है उसने, तो चल पूछते हैं अगर वो इजाज़त दे। तो पुत्र मैं गया तो मैं देख के हैरान रह गया, एने लगे थले कुपियाँ बजियाँ ने दूध दिया। मैंने उसको पूछा 1 टाइम मिल्क 35 kg। मैं लगता तेरा पीरवा भी पा रहा है कोई भाई साहब के तवीज़ नाल 8 दूते गई तेरा को पीर डाडा ही है 35 जी है 35 kg 1 टाइम 35। मैं अपनी अखा ना देखा। तो चलो मैं बात नहीं बढ़ाऊंगा, वक्त भी काफ़ी हो चुका है। बहरहाल हजरत दूध भी पिया, मैं वापस आया तो मैंने अपने अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की। मैं अर्ज़ की थी मैं या अल्लाह फजर तो बाद भी 3 बारी आख्या सी ला इलाहा इल्लल्लाह, तो 3 बारी जोर तो बाद भी आख्या ला इलाहा इल्लल्लाह, 3 बारी असर तो बाद भी आख्या, 3 बारी मगरब तो बाद भी आख्या, 3 बारी शाह तो बाद भी। मेरी फेर भी 8 किलो, ये तेन मनती कोई नहीं है 35 किलो, ये केड़ी वंड हुई है। तो मैं कुछ ये तो नहीं कहूँगा कि कोई इस तरह का मुझे जवाब आया, लेकिन बहरहाल जिस तरह भी जवाब आया आ गया। और वो जवाब ये था, क्योंकि तेरी नीयत पानी पान दी भी है,
ਕੈਮੀਕਲ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਪਾਊਡਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੇਰੀ 8 ਕਿਲੋ ਉਹਦੀ ਨੀਅਤ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ नीयत ठीक करिए पुत्र, नहीं तो तवीज़ नाल होना कुछ भी नहीं। नीयत ठीक करिए, इसलिए हज़रत हमसे बरकत छिन गई। हज़रत साड़ी 8 तूते नहीं जान रही, वो एक टाइम की 35 किलो देन दी, क्योंकि ना उसका पानी का इरादा है, ना उसका कोई केमिकल का इरादा है, और ना उसका पाउडर का इरादा है। और साढ़े सारे प्रोग्राम फिर क्या हुआ, बरकत छिन गई है। और पुत्र खाना उसको ठीक दें। मैंने जब देखा ना, मैंने कहा पुत्र ये 4 काफ़ी है तेरे वास्ते। माशाल्लाह किबला शाह साहब बैठी हैं, सादात जलवागर हैं, किबला शाह साहब तशरीफ़ फरमाए, उलमा हैं। वो लिखा ना, वो ऊँट, आपने शायद इसको मजाक में ले लिया, वो ऊँट नबी अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया था। और हुजूर तो सबकी बोलियाँ जानते हैं। आपने फिर उसके मालिक को बुलवाया और आपने फरमाया तेरी शिकायत कर रहा है, ये मुझे तेरे लिए अर्ज़ कर रहा है कि अल्लाह के रसूल काम मुझसे ज़्यादा लेता है, लेकिन खाना मुझे, ये आप इसको शायद मजाक में ले गए, ये वाक़तन शिकायत करते हैं। उस ऊँट ने तो रसूल पाक से कर ली, तो मैं जड़ियाँ 4 बजियाँ ने कि करन जाके एक 2 टाइम उन्होंने कर दिया ने कि या अल्लाह दुध टीका ला के चो लेंदा है, लेकिन पांदा मैनू कख भी नहीं। आप तवीज़ लें, मैं आपको मना नहीं करता, लेकिन हज़रत साहब नीयत भी ठीक करें और उसकी खुराक भी ठीक, सब ठीक हो जाएगा। हज़रत बरकत रुस गई साढ़े को, क्योंकि पुत्र हम अल्लाह को तो मानते हैं, लेकिन अल्लाह की मानते नहीं। मुझे जवाब आया, उन्हें क्या सानू तो नहीं मनता, लेकिन साड़ी मनता है। तो आप अपने काम की पूछते हैं, लेकिन ये नहीं पूछते कि दिल भी पड़ता है। लेकिन पता नहीं आपने अब भी पूछना है कि नहीं पूछना। लेकिन लिखा है किसी ने हज़रत मुजद्दिद अल-फ़िसानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह से पूछा था कि हज़रत दिल भी पड़ता है? आपने फरमाया हाँ दिल भी पड़ता है। उसने कहा कि हुजूर दिल कैसे पढ़ सकता है? आपने फरमाया क्यों, तुझे क्या मसला है दिल के पढ़ने में? मैंने कि हुजूर गोश्त का एक टुकड़ा है, ये कैसे पड़ेगा? आपने फरमाया ज़ुबान भी तो गोश्त का टुकड़ा ही है। जो अल्लाह ज़ुबान को तौफीक दे सकता है, तो थोड़ी सी हिम्मत कर, वो तेरे दिल को भी दे देगा। लेकिन पुत्र हिम्मत करे कौन है? हिम्मत करे कौन है? हाँ जी। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करूँगा, एक आस्थाना है, एक खानका है, पुत्र हिम्मत करो। बड़ा वेला हो गया है, देखते ही कोई थोड़ा जिहा दिल भी आई है। और समझ नहीं आई कि हज़रत ये थोड़ा सा फासला हमसे क्यों तय नहीं हुआ। अगर मैं देखूं तो 10 साल से लेकर हज़रत 65-70 साल की उम्र तक के अहबाब मौजूद हैं। बड़ा फासला यार, ये ज़ुबान से दिल तक का फासला तो ना सालों का है, ना ये घंटों का है, ना ये मिनटों का। ये तो ये देखो ना, ये दिल है, छोटी उंगली इधर रखी तो लो जी, एक गिट फासला है जो हमसे तय नहीं हो सका आज तक। कल भी अल्लाह इधर था, आज भी अल्लाह इधर ही। कल भी रसूल पाक इधर ही थे, आज भी रसूल पाक इधर ही। कल भी अली इधर ही थे, आज भी अली इधर ही। सही है। मैं बड़ा हसास मिजाज आदमी हूँ, छोटी छोटी बातों का मैं असर लेता हूँ। मैं जब ये सड़कों से गुजरता हूँ तो बड़े बड़े बैनर लगे मैंने देखे हैं, उन पर क्या लिखा है, यूके तालीम का बेहतरीन मौका। मैं पुत्र को दावा नहीं करने लगा। ये यूके वाले कहते हैं कि हज़रत असी 30 साल जाना यूके नहीं वेख्या जिन्ना तुसी 3 साल वेख छड़े। लेकिन मैंने कहीं यूके में ये लिखा नहीं पड़ा पाकिस्तान में तालीम हासिल करने का। अली हमारे पास है कि यूके वालों के पास है?